Now, search operations underway in Faridabad's Dhauj. Cops have been conducting searches inside shops in this very village market area. Dhauj market near the Al-Falah University, in fact, is being searched at this point. Team of 10 police personnel involved in searches. They were seen asking for ID cards of all those who are, in fact, nearby as well. People riding vehicles as well, drivers in that area, and shops and shopkeepers, shop owners. They are also, in fact, being looked into, and their shops are also under scanner. Proper search operation has been conducted, an extensive one at that. In fact, Himanshu will bring us more details from the ground there. Himanshu, आप अभी वहीं उसी मार्केट में हैं जहाँ पे ये सर्च ऑपरेशंस जारी है. आप हमें बताइए कि आप कुछ देर पहले हमें दिखा रहे थे कि कैसे सर्च ऑपरेशंस अंडरवे है इस पूरे जगह में. कुछ ऐसी खबर मिली है पुलिस ऑफिसर्स को अभी फिलहाल इस सर्च से? सर्च और वेरिफिकेशन अभियान को चलाया गया था और दरअसल आप देखिए जिस तरीके से जो ये पूरा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पकड़ा गया है टेररिस्ट का, डॉक्टर्स का, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें ये पता लगा कि कैसे वो आसपास की बाजारों में मूवमेंट करते थे. पुलिस को इस बात का भी अंदाजा है कि सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि जो पूरा सामान उनके पास से बरामद हुआ है वो नूह से, मेवात से या धौज के बाजार से उन्होंने खरीदा होगा. तो इसलिए पुलिस पूरी तरीके से सर्च वेरिफिकेशन अभियान चला रही थी, दुकानों पर जा रही थी, किस तरीके का सामान बेचा जा रहा है ये पुलिस देख रही थी. क्या जो रजिस्टर में मेंशन है वही सामान दुकान के अंदर है, नंबर 1. नंबर 2, अगर किसी दुकान में लोग काम करते हैं, बाहर के लोग काम करते हैं, तो उन लोगों की आईडी प्रूफ क्या है, कहाँ के लोग दुकान में काम करते हैं, लोकल हैं या बाहरी हैं. तो ये तमाम चीज़ें वेरीफाई की गई, वेरिफिकेशन की गया, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ये सारी Well, viewers, Himanshu is bringing us details from Faridabad at this given point. This is, in fact, specifically speaking, the area right nearby to the Al-Falah University, and this is the Dhauj village market area where the 10 police personnel operation is currently underway. They have been visiting all the shops in the market area to check the ID cards of each of these shop owners and even the hawkers nearby, or those locals who drive auto rickshaws. They're taking a look of all people involved in this very region. Now, this is an extensive search operation underway in this very locality because CCTV footages and several such piece of information that's been coming in from within the Al-Falah University and also areas around that has been revealing several important details within the Delhi 10/11 blast case, and more importantly, it has come out to expose a bigger terror network that has been established within the very university that we are in fact speaking of, the epicenter that became the epicenter of crime, that is Al-Falah University. Now, speaking of this very search operation, there are several police personnel currently at the very location who are doing an extensive search of these shops to in fact understand if they had any connect or any other materials hidden, for that matter, any piece of information that they might be receiving. Now, Himanshu, we'll go back to Himanshu at this given point. Himanshu, जैसे आप हमें बता रहे थे कि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये सुबह से जारी है और सारे पुलिस ऑफिसर्स दिख रहे हैं कि जितने भी शॉप्स है हर एक शॉप में जाके ये लोग आईडीज चेक कर रहे हैं शॉपकीपर्स के, और ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई सामान उनको मिल रही है कि नहीं, ऐसा जो थोड़ा सस्पिशियस हो. तो अभी कोई फिलहाल डिटेल सामने आई है इन सर्च ऑपरेशन से, ऐसा कुछ मिला है उनको वहाँ से? नहीं, फिलहाल ये सर्च अभियान, वेरिफिकेशन अभियान जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया और आज पुलिस को कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है. पुलिस जो 2 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे रही थी, एक, जिस चीज़ की दुकान है या जो चीज़ें मेंशन है रजिस्टर में, क्या उनके अलावा भी कोई सामान दुकान के अंदर मौजूद है, नंबर 1. नंबर 2, जो लोग दुकान में काम कर रहे हैं वो लोग क्या लोकल हैं या बाहरी हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन कराया गया है या नहीं. तो ये चीज़ें पुलिस ध्यान में दे रही थी और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज लगा है, कैमरा लगा है, तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितने दिन का फुटेज स्टोर होता है, तो ये तमाम चीज़ें थी
जो पुलिस दुकानदारों से मिली, उनसे बातचीत की, पुलिस ने अपना एक रजिस्टर मेंटेन किया और एक तरीके से पुलिस ने इस पूरे मार्केट में जो धौज का जो पूरा मार्केट है, जहां पर हम मौजूद हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी, यहाँ से 300-400 मीटर ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस पूरे मार्केट में एक मैसेज भी दिया गया कि इस तरीके के अभियान अब चलते रहेंगे और अगर कोई संदिग्ध शख्स आता है, किसी चीज़ की मांग करता है, आपको अजीब लगता है, तो फौरन पुलिस को इत्तला दी जाए। ऐसी भी लोगों से बातचीत की गई है। पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे इलाके में एक कोई भी अगर बाहरी आता है, जिस तरीके से हमने देखा कि उमर के कई सीसीटीवी फुटेज 10 नवंबर के पहले के सामने आए, जिसमें वो नूह, मेवात, धौज की दुकान में भी हमने देखा कि मोबाइल की दुकान में जाके बैठा था। तो इस तरीके से अगर कोई शख्स घूमता है जो बाहर का है, तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिले। इस तरीके की पुलिस यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रही थी। तो आज का जो वेरिफिकेशन था, उसमें फिलहाल कोई भी संदिग्ध सामान या शख्स यहाँ से पुलिस को नहीं मिला है। जी। जी, हिमांशु, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद. Well, so viewers, that is what we are picking up. There's no suspicious material or anything suspicious in terms of the IDs that have been checked of the shop owners and the locals there. That has been recovered by the police today. But yes, the search operations and several other such operations simultaneously are continuing as the probe into the Delhi terror attack and the Al Falah University links continue to only mount.